प्यारे बच्चों, आपां पिछले वीडियोज़ दे विच एक्सरसाइज 6.1 6.2 ਦੀਆਂ वीडियोज़ देख चुके हैं। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ एक्सरसाइज 6.3 ਦੀ। ਇਸ एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.3। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਹੈ ABC, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿਕੋਣ ਹੈ PQR, ਇਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਸਮਰੂਪ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ SSS ਸਮਰੂਪਤਾ। SS ਸਮਰੂਪਤਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਜਿਸ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰੂਪ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ AB ਅਤੇ PQ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, BC ਅਤੇ QR ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, AC ਅਤੇ PR ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ SSS ਸਮਰੂਪਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਤੇ 15 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 1/3। 6 ਤੇ 18 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ 1/3। 7 ਤੇ 21 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਯੈਸ 1/3। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? SSS ਸਮਰੂਪਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AAA ਸਮਰੂਪਤਾ। AAA ਸਮਰੂਪਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਨੇ ABC, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਕੋਣ ਹੈ PQR। ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ A ਤੇ P ਕੋਣ, B ਅਤੇ Q ਕੋਣ, C ਤੇ R, ਇਹ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ AAA ਸਮਰੂਪਤਾ। ਕੋਣ A P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਣ B Q ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਣ C R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਿਕੋਣਾਂ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ।
क्योंकि आपां नूं पता है त्रिकोण दे तिन्नों कोणां दा जोड़ 180 हुंदा है। अगर दो कोण बराबर ने तो तीसरा कोण भी उन्हां दा बराबर होएगा। तो इस समरूपता नूं आपां ए समरूपता भी आख देंगे। तो पहली समरूपता आपां ने कीती सी बच्चों, नियम सी जो SSS। दूसरा नियम है ए। हुण आपां गल करदे हां तीसरे नियम दी जो है SAS समरूपता। बिल्कुल उस तरह मान लो कोई दो त्रिकोणा आपां नूं दित्तियां होईयां ने ABC PQR। ये दो त्रिकोणा आपां नूं दित्तियां होईयां ने। मान लो AB ते PQ BC अते QR दा अनुपात आपां नूं बराबर दिता गया। AB PQ BC QR ये दो भुजावां दा अनुपात बराबर दिता गया है। ते इस दे विचकारला ही कौन आपां नूं बराबर दिता गया है। कौन B ते कौन Q बराबर दिता गया है। तो ये बन जाएगा SAS समरूपता। S का मतलब दो भुजावां दा अनुपात, A का मतलब कोण का अनुपात। तो इस दे नाल भी दो त्रिकोणां नूं समरूप सिद्ध किया जाता है। तो बच्चों ध्यान देना है, आपां ने 3 नियम पढ़े हैं। पहला है SSS समरूपता कि अगर दो त्रिकोणां दियां तीनों अनुसारी भुजावां का अनुपात बराबर हो जाए। शाबाश। दूसरा नियम यस ए समरूपता, मतलब दोनों त्रिकोणां दे अनुसारी कोण बराबर हो जान। तीसरा नियम SAS मतलब यस दो भुजावां का अनुपात ते उन्हां दे विचकारला कोण बराबर हो जावे। तो सब तो पहला आपां यह सीखिया कि दो समरूप त्रिकोणां नूं किसी भी दो त्रिकोणां नूं समरूप सिद्ध करना है तो असी इन्हां 3 नियमां दी वरतों करदे हां। पॉज कर। बच्चों आपां देख चुके हैं कि किस तरह आपां दो त्रिकोणां नूं समरूप सिद्ध करना है। हुण आपां गल करांगे दो समरूप त्रिकोणां दी। ध्यान देना बच्चों, सब तो पहला आपां सिक्ख्या सी कि दो त्रिकोणां नूं समरूप किस तरह करना है, जिस दे लिए आपां पढ़े सी 3 नियम। नंबर 1 यस SSS, नंबर 2 यस A। नंबर 3 यस SAS। ये 3 नियमां की सहायता दे नाल आपां किसी भी दो त्रिकोणां नूं समरूप सिद्ध कर सकते हैं। हुण आपां गल करांगे दो समरूप त्रिकोणां दी। दो समरूप त्रिकोणां दी। बच्चों आपां ने दो त्रिकोणां नूं समरूप करन दा तरीका तो सीख लिया है। हुण आपां की देखना है, मान लो साडे कोले दो त्रिकोणां ने ABC PQR। सानू दिता गया है कि त्रिकोण ABC समरूप है त्रिकोण PQR दे। दो त्रिकोणां आपां नूं समरूप दित्तियां गईयां ने। आपां देखना है कि इन्हां दे परिमाप त्रिकोण ABC, परिमाप त्रिकोण PQR, इन्हां दे परिमाप का अनुपात की बनेगा ते इन्हां दे खेत्रफलों का अनुपात की बनेगा। देखो बच्चों, जिवें परिमाप की हुंदा है, तीनों भुजावां का जोड़ उसनूं आपां परिमाप आखदे हां। जो भुजावां का अनुपात होएगा उही
परिमाप का अनुपात होएगा, ये नोट करना है तुसी। जो अनुपात भुजावां दा होएगा मतलब ए बी वटा पी क्यू, जो अनुसारी भुजावां दा अनुपात है उही परिमाप का अनुपात होवेगा। आपां ए सी वटा पी आर भी लिख सकते हैं, आपां बी सी वटा क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चों कि जो भुजावां का अनुपात है उही दोनों त्रिकोणां दे परिमाप का अनुपात है। हुण आपां गल करांगे इन्हां दे खेत्रफल के अनुपात की। त्रिकोण खेत्रफल नूं बेटा इंग्लिश एरिया बोलते हैं, उस दे लई मैं ए आर यूज़ कर रहा। ए आर मतलब खेत्रफल त्रिकोण ए बी सी, खेत्रफल त्रिकोण पी क्यू आर। इन्हां दे खेत्रफलों का अनुपात की होवेगा ये नोट करना है आपां ने। जिस तरह खेत्रफल का फार्मूला अपने कोले की हुंदा है 1/2 गुना आधार गुना लंब हुंदा है, तो इस दे विच दो भुजावां की गुना हुंदी है। तो बच्चों तुसीं याद रख सकते हो कि जो अनुसारी भुजावां का अनुपात सी ए बी अते पी क्यू का अनुपात सी उहदा वर्ग हो जाएगा। आपां बी सी वटा क्यू आर भी लिख सकते हैं, आपां ए सी वटा पी आर भी लिख सकते हाँ। तो इत्थे ध्यान देना बच्चों कि दो समरूप त्रिकोणां दे खेत्रफलों का जो अनुपात है वह अनुसारी भुजावां दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर है। तो यही अपनी थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपां इस थ्योरम नूं सिद्ध करांगे। उस दे लई सब तो पहला आपां देखदे हां थ्योरम दी स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक, ये थ्योरम दी स्टेटमेंट है। दो समरूप त्रिकोणां दे खेत्रफलों का अनुपात उन्हां दियां अनुसारी भुजावां दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर हुंदा है। तो बच्चों इत्थे आपां नोट करदे हां सानू की दिता है। सानू दिता गया है कि जो त्रिकोण ए बी सी है वो समरूप है त्रिकोण पी क्यू आर दे। त्रिकोण ए बी सी त्रिकोण पी क्यू आर दे समरूप है। तो बच्चों आपां समरूपता दे नियमां दी वरतों करके आपां इत्थे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गल लिख सकते हैं कि अनुसारी भुजावां का अनुपात बराबर होएगा। ये आपां गल लिख सकते हैं बच्चों, तुसीं भी नोट कर लेना है। ए बी वटा पी क्यू, बी सी वटा क्यू आर बराबर है ए सी वटा पी आर। ये आपां इस दी वरतों करांगे। होर आपां नूं दिता गया है, आपां नूं पता है कि दो त्रिकोणा समरूप होण तां उस दे अनुसारी कोण भी आपस विच की होणगे, बराबर होणगे। तो ये आपां नूं दिता गया है। इत्थे आपां रचना करते हाँ। रचना की करनी है बच्चों, आपां नूं पता है, आपां पहलां वाली वीडियो दे विच भी देखिया सी त्रिकोण दा खेत्रफल की हुंदा है। सोचो, बिल्कुल ठीक, 1/2 गुना आधार गुना शिखर लंब। तो इत्थे असीं शिखर लंब लैके आवांगे। इस आपां पी मान लैंदे हाँ, क्यू मान लैंदे हाँ। तो अपने कोले रचना की आ गई, एक आपां ने लंब बनाया ए पी बी सी उपर, एक लंब बनाया पी क्यू क्यू आर उपर, बिल्कुल ठीक। आपां अल्फाबेट 2 बार इस्तेमाल कर ले, आप इत्थे चेंज कर दें बच्चों एम एन। आपां ने ए एन लंब बनाया है बी सी उपर, पी एन लंब बनाया है क्यू आर उपर। बिल्कुल ठीक है, ये आप रचना की है। दोने त्रिकोणां दे विच शिखर लंब आपां बना लए हन। इस तो बाद आपां गल करांगे सबूत दी।
कि ਆਪਾਂ किस तरह सिद्ध करांगे कि इन्हां दो त्रिकोणां दे खेत्रफलों का अनुपात अनुसारी भुजावां दे वर्ग दे अनुपात दे बराबर है। इस तो पहला बच्चों ध्यान दिओ, ये वड्डियां त्रिकोणां समरूप हन, आपां छोटियां त्रिकोणां नूं भी समरूप सिद्ध करांगे। सब तो पहला देखना मैं की दस रहा, एक ए वाली त्रिकोण ते एक ए वाली त्रिकोण, ये दो छोटियां त्रिकोणां नूं आपां समरूप सिद्ध करांगे। याद करो बच्चों, अपने कोले 3 नियम सीगे, 3 नियम दे विचों किहड़ा नियम दी वरतों कर सकदे आपां? सोचो, देखो, त्रिकोण ए बी एम दे विच, त्रिकोण पी क्यू एन दे विच, तां आपां लिख लैंदे आ त्रिकोण ए बी सी ए बी एम अते त्रिकोण पी क्यू एन विच। देखो, सोचो, अनुसारी भुजावां का अनुपात बराबर आएगा या कौन बराबर आएंगे? शाबाश। जो आप गल की है लंब की, तो आपको पता है 90 डिग्री का कौन है, कौन एम बराबर एन है। बिल्कुल ठीक। कौन बी बराबर कौन क्यू, ये भी आपां क्योंकि वड्डियां त्रिकोणां आपां नूं समरूप दित्तियां हन, इस करके इन्हां दे अनुसारी कौन बराबर हन। शाबाश। ते बच्चों, ये तुहानूं दस्सिया ही सी, अगर दो कौन भी बराबर आ जान तां ओह दोने त्रिकोणां की बन जांदियां हन? समरूप बन जांदियां हन। तां इत्थे आपां लिख लांगे त्रिकोण ए बी एम समरूप है त्रिकोण पी क्यू एन दे। तां अगर दो त्रिकोणां समरूप ने तां इन्हां दे अनुसारी भुजावां दा अनुपात की होएगा? बराबर होएगा। आप लिख सकते हाँ ए बी वटा पी क्यू बराबर है ए एम वटा पी एन। तो इसनों नोट करना है बच्चों, समझना है भी यह अपने को की आ चुका है, की रिजल्ट आ गया है। बच्चों, जो अनुसारी भुजावां दा अनुपात है उही शिखर लंब दा अनुपात है। ये गल असी इत्थे देखण नूं सानूं मिली है। आपने ये सिद्ध किया है कि जो अनुसारी भुजावां दा अनुपात है उही उन्हां दे शिखर लंब दा अनुपात है। तो इस तो बाद बस हुणी आपां प्रूव करन लग्यांगे कि खेत्रफलों का अनुपात अनुसारी भुजावां दे वर्ग दे किवें आएगा। तो देखियो बच्चों, त्रिकोण ए बी सी का खेत्रफल, त्रिकोण पी क्यू आर का खेत्रफल, खेत्रफल का फार्मूला बिल्कुल ठीक, 1/2 गुना आधार गुना शिखर लंब। तो पहली त्रिकोण दे विच आधार बी सी है, शिखर लंब ए एम है। शाबाश। दूसरी त्रिकोण दे विच आधार क्यू आर है, शिखर लंब पी एन है। 1/2 नाल 1/2 कटिया गया। अनुसारी भुजावां बच्चों आपां यह दिता है दे विच लिखिया सी, देखो अपनी नोटबुक के उपर बी सी वटा क्यू आर की थां ते आपां की लिख सकते हैं ए बी वटा पी क्यू। ते बच्चों आपां हुणी सिद्ध कर चुके हैं कि जो शिखर लंब का अनुपात है उही अनुसारी भुजावां का अनुपात है। तो इत्थे शिखर लंब की जगह ते आपां की लिख लांगे ए बी वटा पी क्यू। तो यह की बन जाएगा? ए बी का वर्ग पी क्यू का वर्ग। तो इत्थों यह सिद्ध हो जाता है कि दो समरूप त्रिकोणां दे खेत्रफल का अनुपात अनुसारी भुजावां दे अनुपात दे वर्ग दे बराबर हुंदा है। तो बच्चों, इस अज दी इस वीडियो दे विच सब तो पहला आपां की सिक्ख्या सी कि दो त्रिकोणां नूं समरूप सिद्ध करना होवे तां असीं किहड़े नियमां दी वरतों करदे हां? एस एस एस, ए एस ए एस। शाबाश। फिर आपां सिक्ख्या है कि अगर दो त्रिकोणां समरूप होण तां उन्हां दे परिमाप दा खेत्रफल उन्हां दे परिमापां दा अनुपात अते खेत्रफलां दा अनुपात।
ਤਾਂ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤਾਂ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਿਕੋਣ ABC। ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਹੈ MNO। ਇਸ ਦੀ ਭੁਜਾ AB ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MN 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਮਾਪ ਤਿਕੋਣ ABC, ਪਰਿਮਾਪ ਤਿਕੋਣ MNO। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ 5/10 ਜੋ ਕੱਟ ਕੇ 1:2 ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੂਪ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 5 ਦਾ ਵਰਗ 10 ਦਾ ਵਰਗ, 5 ਗੁਣਾ 5 10 ਗੁਣਾ 10 ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। 1 ਗੁਣਾ 1 1, 2 ਗੁਣਾ 2 4। ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ 1:4। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰਿਮਾਪ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਇਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਕੋਣ ABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 64 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ MNO ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 121 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ MN ਦੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ NO ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 33 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ BC ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਸਮਰੂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। x ਦੀ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। 33 ਦਾ ਵਰਗ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਰਗਮੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ 64 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 ਗੁਣਾ 8, 121 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 11 ਗੁਣਾ 11। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, 1 8 12 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 33 ਦਾ 33 12 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 11 ਦਾ 11 12 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 11 ਤੀਏ 33, 8 ਤੀਆ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 6.3 ਦੇ ਸਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।